Yes, and now let me start this session with this point of LCM. Now, transportation problem has two types. All of you know that. So, what that two types we are having? Transportation problem has two different types. One is balanced, am I right? And second is unbalanced. Yes. So, balanced transportation problem always has solution. Always have feasible solution. All of you agree that? So, if we solve this particular balance problem every time, the total number of basic feasible solution, the number of decision variables, we are going to get as m plus n minus 1 solutions in the system. Now, what is that m? M is the number of sources and n is the number of destinations or demands. Destination I'll write down. Destinations means if we could look into this particular transportation problem, 3 rows we are having of sources and 4 rows of the demands or the destinations. So 3 into 4, total 12 decision variables I am having here. So transportation problem is a subset of, in that sense, linear programming problem. Every linear programming problem is not a transportation problem, but every transportation problem is a linear programming problem. So total 12 decision variables we are having, which we cannot address with the simplex method what we studied under the LPP. So we are going for the transportation problem and some different methods we adopted to solve that. Now, if suppose our basic feasible solution, the number of components or decision variables included in it are less than the value m plus n minus 1, then we'll get degenerate solution. Correct? And if this basic feasible solution is equal to m plus n minus 1, then we are having non-degenerate solution. So that fact we must know. And m into n are the number of decision variables in that given transportation matrix. Now, if we are having matrix, a transportation problem and its matrix, then we should understand the components of that matrix as well. Now, with the blue line, I have noted the transportation cost across each source and each destination. So, this pink colored border forms a matrix which is called as the cost matrix. Correct? Then for the destinations and for the sources, we are having a particular limiting value which is noted across each row and across each column. So for source 1, 50 is the production. For source 2, 40 is the production. For source 3, 70 is the production. So that last column accumulates the total supply and last row accumulates the total demand at each of the destination, right? And this represents our transportation problem. Now, from where we could understand whether the transportation problem is balanced or unbalanced, from the row sum, that is demand वाली जो रो है उसकी sum, and column sum, supply वाला जो column है उसकी sum, ये equal होनी चाहिए. Then and then only transportation problem is balanced, else it is unbalanced. What we do if the transportation problem is unbalanced? We add a dummy row or dummy column. Dummy column. Dummy row हम कब ऐड करते हैं? To balance the supply. To balance the supply, correct. And dummy column कब ऐड करते हैं हम? To balance the demand. To balance the demand. So that understanding we should know to go for the MATLAB programming for any one of these 3 methods, LCM, NWCM and BHAM. And with this basics or backdrop, now we can start solving the LCM method, first of all manually and then with the programming. So I'll get back to once again this matrix. I'll just erase this part once again.
Okay, so this is your transportation problem. Now we are going to solve that. Problem is unbalanced and sum of B column demand row is less than sum of A. So this is unbalanced problem. So what we have to do here, we have to add a dummy column here, correct, with all 0 entries. I'm sorry, this is not rows, all 0 entries, correct. So we are going to add here dummy column. So D5 as dummy column we added, and we balanced our row addition sum of the last row to sum up to 160, which is the addition of this last column as well. So अब ये 160 है for row as well as for column. Now it is balanced one, and now we have to find out the minimize the transportation cost through the LCM method, least cost method. So least cost, from where we are going to find out? From the cost matrix. And once we find out the least cost from that column and row, the minimum of allocation we are going to make just to reduce our transportation cost. We are following this particular rule, and that rule is followed for 3 rows and 5 columns. So total 50 elements के लिए मुझे ये rule follow करना है. And while the algorithm we are processing, few of the columns, few of the cells of this cost matrix, or the few of the elements of certain rows and columns will get deleted. Deleted means we are not going to see that element in further calculation. For example, suppose over here, let me come to the once again this particular matrix. Over here, D5, this is your cost matrix, and in cost matrix we are having the list elements as these 3 zeros. Now out of these 3 zeros I can choose the least one. The rest of elements are positive and we cannot choose any one of that because we are having 3 zeros over here. And now across these 3 zeros we are having cost 50. For this first 0 we are having cost 50 and 30. So we'll try to assign the value here 30. Am I correct? Yes or no? Yes, sir. Yes. Now Yes. further, yes. Thank you. Further we move towards these two values 40 and 30. Again if I try to choose this 0, again I can assign 30 value out of this 40 and 30. Alright. Suppose यहाँ पर मेरे पास 20 value होती तो I would have assigned 20 value to this 0. Am I right? But here we don't have that 20 value, so I'll assign 30 values once again here. And अगर मैं ये 0 choose करूँ तो again I can assign 30 to this value. Now out of 30 at each of the position I have to select any one. For suppose I selected the first one, correct? So over here I can assign out of this 50 and 30 value over here, and here it will remain 0 and here it will remain 20, right? But when I choose the allocation 30 at this position, this is the position 1, 5, this rest of 2 allocations we are going to cancel out, because here the demand column is fulfilled with this allocation. Am I right? So we are going to cancel out the next 2 elements. So this algorithm we have to write down in a proper way while writing down the program. This is the very first thing. Now secondly, as remaining elements are still there and we have to choose the least cost amongst that, so 7 is the least cost. Am I right? And for 7 the allocation can be made from the source 1, which is now remaining 20, and the demand, which is 35. So least of that we can allocate here. So this is 20 over here, so it will remain 0 here and it will remain 15 here. And once again, as we are having 0 over here, the source 1 completes its supply and hence will not give the further allocation to the rest of 3 members, so we can cancel it out. So likewise LCM method is applied and we can find out solutions or allocations in this way. So 30 here, 20 here, then 25 over here, 15 here, 30 here and 40 here. So these are the 6 positions we are going to get to get the allocations properly, following all the sequence of the LCM method. And finally what we do,
we find out the least cost, which is called as the initial basic feasible solution in this way. This is 20 into 7, 140. Then here this is 30 into 0, 0, right? Then this is 25 into 16. So this is 400, correct? Then this is 30 into 8, 240. Then this is 15 into 10, it's 150. Which one is remaining? 30 into 8, 240, and this is 40 into 9, 360. So all that will sum up to 1290. So this is your LCM method. I hope all of you know this method very well, correct? And now let us go for the programming. And I hope the last session you could remember, where the MATLAB online MATLAB session we can start through our login. लॉगिन कहाँ पर करना है? matlab.mathworks.com पर. If you have already registered, just open that and try to check it out, or just try to understand first of all these codes I am going to send to you, and using that course you can reframe another problems also, and you can check out their solutions also by just identifying what is the cost matrix, what is the column, which is the supply matrix, right? Supply column and the demand row. That three things you have to verify very carefully. So let us start step by step. So I hope this sheet is visible everyone. I opened the online MATLAB. This is my login, personal login to mathworks.com, and I am setting the algorithm or program over here. I hope it's visible everyone. I'll mark step by step, and we are going to explain that step by step. Okay, is it visible everyone properly, the code and all? Yes, ma'am. Okay, so see the first part which I highlighted. This is CLC clear all and format short. CLC will clear your screen. Clear all will clear all the programs in the compile window, and format short, the third line, will keep correct values up to 4 decimal points. If you write down, there are two options, either format short or format long. If it is format long, we can extend our decimal places up to 9 or 10 digits. And now we have just noted two lines with the percentage sign. This is the MATLAB code for least cost method, and input information first of all we are giving in first phase. So input phase is cost matrix with the first row 11, 20, 7 and 8, with second row 21, 16, 10 and 12, 8, 12, 18 and 9. So this is the same cost matrix which I have noted over here, जो प्रॉब्लम हमने अभी सॉल्व किया है जर्नल पर, करेक्ट? So same matrix I substituted here in square bracket, and I assigned the name COST, cost, to that matrix. Then supply wala column. So this is 50, 40, 70. You can look into this is 50, 40, 70, the column of supply. Then row for the demand 30, 25, 35 and 40. You can observe here this is 30, 25, 35, 40. So that I have added here again in terms of one array. So A is the supply array, B is the column array which is of demand, and cost is the cost matrix. So these three things are our inputs. Now we can check out how these three inputs will look like if I select it and control enter. So here I can check out the cost matrix will look like, cost matrix will look like in this way, right? Then supply column will look like in this way, and demand column will look like in this way. So these three things we can observe in command window. So this is the compilation of our commands. Now second phase is to check out whether the problem is balanced or unbalanced. So how we are going to check out whether this summation of A, components of A
and summation of components of B. If it is equal to, then problem is balanced. If it is not equal to, then problem is unbalanced. So we are going to give here the loop. और loop कैसे देते हैं किसी भी programming language में? With if and else statement. So if sum of A matrix, right, and sum of B matrix is double equal to, so अगर मुझे ये equal to sign देना है, so single equal to sign will not be sufficient. I need to give the double equal to sign. If this is equal, f print f. So आपको statement सिर्फ print करना है given transportation problem is balanced. Else f print f given transportation problem is unbalanced. So I may be asked such kind of problem in final ET examination. Check with the programming whether the given transportation problem is balanced or unbalanced and print the statement. So आपको ये प्रोग्रामिंग पूरी यहाँ तक करनी पड़ेगी जब तक ये प्रॉब्लम आप अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस के लिए वेरीफाई नहीं कर लेते, राइट? अगर ये सम इक्वल टू है तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड, ये स्टेटमेंट एज इट इज प्रिंट होगा. बट अगर नहीं है तो so if I have to again add one more loop over here, if sum of A is less than sum of B, and I may have one more equality here, sum of B is less than sum of A, मीन्स कॉलम की सम ग्रेटर हो सकती है रो के सम के कंपेरेटिवली, या फिर रो की सम ग्रेटर हो सकती है कॉलम के कंपेरेटिवली. बोथ कंडीशन वी मे फेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस चेक आउट फॉर सम ऑफ A लेस दैन सम ऑफ B. यहाँ पर हमें क्या करना है, कॉस्ट मैट्रिक्स में ऐड करना है. अगर सम ऑफ A लेस दैन सम ऑफ B है तो हमें कॉस्ट मैट्रिक्स में क्या ऐड करना है, एक रो ऐड करना है. मीन्स आपके कॉलम की सम, सप्लाई की सम कम है रो के सम के कंपेरेटिवली, तो मुझे एंड में कॉस्ट मैट्रिक्स के एक रो ऐड करनी है, राइट? एंड कैसे ऐड करनी है, सारे के सारे जीरोस विद द साइज ऑफ B, करेक्ट? एंड वो रो जो है वो उस रो की जो लास्ट वाली वैल्यू आ रही है कॉलम में, जैसे कि यहाँ पर लेट मी शो यू हियर, यहाँ पर ये वैल्यू आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सो द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू गिव हियर दैट सम ऑफ B माइनस सम ऑफ A. तो ये वैल्यू हमारे लिए कैलकुलेट करना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी के साथ तो हमारा मैचअप होगा. इन सिमिलर पैटर्न एल्स इफ, ये स्टेटमेंट भी फ्रेज भी इंपॉर्टेंट है. एल्स इफ सम ऑफ B इज लेस देन सम ऑफ A, देन उस केस में हम एक कॉलम ऐड कर रहे हैं, राइट? एंड ये कॉलम हम डमी कॉलम ऐड कर रहे हैं विथ ऑल जीरोज एंट्रीज. सो दिस इज इक्वल टू ऑल जीरोज विथ द साइज ऑफ A, ठीक है? देन अगर इसके सबसे लास्ट वाला एंट्री जो रहेगा वो कहाँ पर रहेगा, वो रहेगा एट द एंड. जैसे कि इस प्रॉब्लम में ये एंट्री यहाँ पर है, अगर मेरे पास रो ऐड करनी होती तो ये एंट्री यहाँ पर आ जाती, यहाँ पर एंड यहाँ पर, एंड मुझे यहाँ पर वो सम ऑफ A माइनस सम ऑफ B ऐड करना पड़ता. सो दैट वी आर गोइंग टू ऐड ओवर हियर. अगर मैं ये स्टेटमेंट स्टार्ट कर रही हूँ तो मुझे एंड भी करना है. सो एंड आई हैव टू यूज 2 टाइम्स ओवर हियर विद द इफ लूप, और इफ एल्स लूप इसे कहते हैं. सो इफ यू आर स्टार्टिंग द लूप वी हैव टू एंड द लूप. सो ये पूरा प्रोग्राम हम स्टेप बाय स्टेप रन करके देख सकते हैं. सो जस्ट सेलेक्ट दिस प्रोग्राम फ्रॉम सम टू एंड एंड मैं इसे कंट्रोल एंटर कर रही हूँ. सो दिस विल गेट रन प्रॉपरली. सो मैं यहाँ पर कमांड विंडो में शो करती हूँ आपको कॉस्ट मैट्रिक्स. जस्ट अ मिनट. हाँ, दिस इज योर कॉस्ट मैट्रिक्स. This is your cost matrix as I have shown you. Come to next. This is your matrix A, which is supply वाला column. Then this is row B, demand वाली row. And now for this problem, as we rightly identified, the given transportation problem is unbalanced. Then the next addition must be as a column addition we should have. करेक्ट? सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो कॉस्ट मैट्रिक्स फिर से रिप्रिंट हुई है ना, वो हुई है 0 0 0 लास्ट वाले कॉलम में ऐड करके. एम आई राइट? तो हम ये पूरा प्रोग्राम यहाँ पर स्मूथली रन हो रहा है एंड वी कैन ऐड
that either row or column with the help of this particular if else statement. Got it everyone? सो अब आपको करना क्या है, किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड अगर मुझे प्रूव करना है तो यही प्रोग्राम रहेगा जो हमने अभी यहाँ पर मार्क किया है, दिस वन. एंड व्हाट चेंजेस विल बी देयर, चेंजेस कहाँ पर होंगे, यहाँ पर इनपुट फेज में सिर्फ चेंजेस होंगे. तो आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम चेंज हो जाएगा, तो ये एंट्रीज चेंज हो जाएगी एंड द रेस्ट ऑफ कोडिंग कैन बी सिमिलर. Rest of coding can be similar. I hope this point is clear everyone. Shall I move further? Yes. Okay. Nextly, this I can delete. यहाँ पर आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि सम ऑफ ए एंड सम ऑफ बी इज नाउ इक्वल और नॉट. ओके, एंड लेट मी शो यू दैट कॉस्ट कहाँ पर ऐड हुई है. ए कॉलम यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, कॉस्ट ऐड हुई है बी वाली रो में, सप्लाई वाली. सो हियर यू कैन ऑब्जर्व दिस 30 इज गेटिंग एडेड. जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त यहाँ पर 30 ऐड किया था ना कॉलम लिख के, सो वो 30 यहाँ पर ऐड हो गया, राइट. एंड नाउ आई एम गोइंग टू असाइन दैट कॉस्ट मैट्रिक्स टू अ डिफरेंट मैट्रिक्स आई कॉस्ट. सो ये कॉस्ट मैट्रिक्स अब आई कॉस्ट के फॉर्म में यहाँ पर शो होगा, या मैंने असाइन करके रख दिया है सिर्फ. नाउ आई एम गोइंग टू असाइन इनिशियल एलोकेशन. सो इनिशियल एलोकेशन क्या है कि सारे के सारे जो कॉस्ट मैट्रिक्स के प्लेसेस पर हमारे डिसीजन वेरिएबल्स आने वाले हैं वो सारे के सारे फॉर नाउ 0 है. सो ये हो गया आपका एक्स का इवैल्यूएशन. कोडिंग यहाँ पर है ऊपर वाली विंडो में एंड उसका आंसर आ रहा है ये ऑल प्लेसेस we are having 0. so 15 zeros we are having. now our matrix is 3/5. कौन सा मैट्रिक्स, कॉस्ट मैट्रिक्स 3/5 है का है. 15 entries we are having and this x which is the expected solution will have all 0 entries here. अब ये 0 वाली एंट्रीज हम अपग्रेड करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर अल्गोरिदम. अल्गोरिदम क्या है, सबसे लिस्ट वाली वैल्यू चूज करनी है जैसे कि हमने यहाँ पर की एंड उसके अक्रॉस मुझे मिनिमम एलोकेशंस करके रखना है. देन आई हैव टू सब्ट्रैक्ट दैट पर्टिकुलर वैल्यू फ्रॉम द डिमांड कॉलम और फ्रॉम द सप्लाई कॉलम, राइट. एंड लाइकवाइज आई हैव टू प्रोसीड फर्दर. सो ये हमें कब तक करना है, 15 एलिमेंट्स के लिए करना है. सो 15 एलिमेंट्स आपके कैसे वैरी होंगे यहाँ पर, लेट मी शो यू. आपकी जो पोजीशंस है ना, जब आप ये इस टाइप का एल्गोरिदम लिखोगे तो पोजीशंस कॉस्ट मैट्रिक्स की आपको ऐसे याद रखनी है. दिस इज 1 1 1 2 और A11 A12 A13, this is A14 A15, right, and this is A21. then आगे की एंट्रीज A31, आगे की एंट्रीज A41 and so on. so पोजीशन वाइज आपको ये एंट्रीज याद रखनी है, हमें राइट. सो अगर हमारे पास 3 कॉलम्स रोज है एंड 5 कॉलम्स है, सो वी आर हैविंग 3 into 5 पोजीशंस, 15 पोजीशंस ओवर हियर, करेक्ट. एंड ऑल 15 पोजीशंस के लिए मुझे ये अल्गोरिदम प्रॉपरली रन होके लोएस्ट एंट्री एंड लोएस्ट एलोकेशन, मैक्सिमम एलोकेशंस, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए स्टेप बाय स्टेप. सो माय एक्स, द इनिशियल एलोकेशन वी आर गोइंग टू कंसिडर एज 0. नाउ व्हाट इज द साइज ऑफ आवर कॉस्ट मैट्रिक्स. सो इसके लिए हमने यहाँ पर एक कोड डाला है, स्क्वायर ब्रैकेट में m, n इज इक्वल टू साइज ऑफ कॉस्ट. सो फाइंडिंग द नंबर ऑफ रोज एज वेल एज कॉलम ऑफ योर मैट्रिक्स. तो हम यहाँ पर बहुत ही जनरलाइज प्रोग्रामिंग कर रहे हैं. अगर आपने 100 कॉलम्स एंड 99 रोज वाला भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम लिया तो भी LCM मेथड के साथ ये प्रॉब्लम इफेक्टिवली सॉल्व होगा. नो सच एरर वी विल गेट ओवर हियर. इतना स्ट्रॉन्ग ये अल्गोरिदम या सॉरी प्रोग्रामिंग हम लिख रहे हैं. So it is identifying the number of rows as well as columns. So let us check out here in the command window. n is equal to यहाँ पर 3 है and sorry m is equal to 3 है and n is equal to 5 है. So m and n की यहाँ पर साइज वैल्यूज आइडेंटिफाई हो गई साइज ऑफ कॉस्ट के साथ. देन हमें आइडेंटिफाई करना है कि टोटल नंबर ऑफ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कितने आने चाहिए. वो आने चाहिए m + n - 1. तो हम यहाँ पर एक फिगर आइडेंटिफाई करके रख रहे हैं जो हमें कंपेयर करनी है. अगर आप ये प्रॉब्लम
ढंग से आपने देखा तो कितने एलोकेशंस हुए हैं 1 2 3 4 5 6. हाउ मेनी नंबर ऑफ एलोकेशंस वी आर हैविंग बेसिक फिजिक्स 6. And what is the value of m plus n minus 1? This is equal to 3 plus 5 minus 1, that is 7. So 6 is less than 7. We are going to get here the degenerate solution. हमें यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड और बेसिक फिजिबल सोल्यूशन था, वो मिला नहीं है. सो ये वाला प्रॉब्लम डीजनरेट प्रॉब्लम है, नॉन डीजनरेट प्रॉब्लम नहीं है. तो ये मुझे कंक्लूजन भी मिलना चाहिए इसके साथ. ठीक है. सो हमने क्या किया यहाँ पर भी, इसलिए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन का काउंट लिख के रखा है. सो दैट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन काउंट वी आर गोइंग टू गेट एज 7. स्टेप बाय स्टेप हम हर एक कमांड या इस प्रोग्राम की रन कर रहे हैं. नाउ दैट्स द इनिशियल थिंग विच वी वांट टू जस्ट आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ साइज वी आर हैविंग फॉर द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज, हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम्स आर देयर, एंड व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन. So that part we are having here. Come to the next part now. This is the next phase of our programming and this is little extensive. यहाँ तक है ये, right? तो ये स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं. Now finding the cell with minimum cost. तो हमारा मेथड क्या है? लीस्ट कॉस्ट मेथड. तो हम मिनिमम कॉस्ट हमारे पूरे मैट्रिक्स से आइडेंटिफाई करेंगे, तो वो सेल आइडेंटिफाई करेंगे हम. अब यहाँ पर दो वे में मुझे फॉर लूप यहाँ पर रन करना पड़ेगा. अगर मेरा आई मैं रो वाइज रन कर रही हूँ एंड जे अगर मैं कॉलम वाइज रन कर रही हूँ, तो मुझे दो फॉर लूप यहाँ पर डालने पड़ेंगे टू रन द एंटायर प्रोग्राम. क्योंकि जब मैं एलोकेट कर रही हूँ तो इस वे में मुझे जाना चाहिए ना. लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस. अगर मैं रो वाइज अगर चेक कर रही हूँ तो पोजीशन आ जाएगी 1 1 1 2 1 3 1 4. सो मैं रो वाइज जब मूव ऑन कर रही हूँ तो मेरा कॉलम चेंज हो रहा है. सो दिस इज द सेकंड पोजीशन, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम. अगर मैं रो 2 पर आ रही हूँ तो अब मेरा रो चेंज हो गया. एंड नाउ वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5 एंड सो ऑन. So that for loop gives us privilege to move into that matrix cell by cell, position by position. So we are adding here two for loops. I, which is varying from 1 to size of cost comma 1, means आपके cost matrix के जो m वाला पहला वैल्यू है वहाँ तक वैरी होगा ये, एंड सेकंड वाला जो वैल्यू है वहाँ तक वैरी होगा. मीन्स नंबर ऑफ साइज जो कॉस्ट मैट्रिक्स ही हमने रखी है. सो आई विल वैरी फ्रॉम 1 to m एंड जे विल वैरी फ्रॉम 1 to n. ओके. सो ये वैरी करके करेंगे क्या? सो वी आर गोइंग टू असाइन एच एज द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द एंटायर कॉस्ट मैट्रिक्स. जब मैं यहाँ पर ये सेमीकोलन लिख रही हूँ ना, तो आपका पूरा जो कॉस्ट मैट्रिक्स है जो 3/5 का दिख रहा है वो एक सिंगल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है. तो वो पूरे कॉलम के लीस्ट एलिमेंट को आइडेंटिफाई करता है. अब अगर ये वाला जो हमने मैट्रिक्स लिखा है ये अगर मैंने एक पूरे कॉलम में लिख दिया 11 21 8 20 16 12 7 10 18 एंड सो ऑन, तो पूरे इस एक ही कॉलम में सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी होगी? ऑब्वियसली 0. तो ये एच जो है ना वो 0 को वैल्यू असाइन करेगा. सो मैं इसे रन, ये पूरा मैं रन करती हूँ क्योंकि ये अकेला रन होगा या नहीं, आई हैव जस्ट डाउट. ओके, रन करके देखती हूँ मैं. कंट्रोल F और कंट्रोल एंटर. ओके, पूरा ही रन हो रहा है. फाइन. आई हैव ब्रेक दैट इनटू द स्टेजेस. सो ये पूरा ही प्रोग्राम रन हो रहा है, सिंगल लाइन नहीं रन हो रही है. इफ यू कुड सी, ये पूरा प्रॉब्लम मैंने ब्रेक किया है स्टेजेस में. सो दिस इज योर फर्स्ट फेज, second phase, and now we are dealing with the third stage. I forgot that. Okay, so HS is equal to minimum of cost of that matrix. I'll just get back to this. Wait a minute. See this, कहाँ पे गया? हाँ, ये देखो H.
यहाँ पर एच हमारा 0 असाइन हो चुका है, करेक्ट। लेकिन कितने ज़ीरोज़ है? 3 ज़ीरोज़ है। 3 ज़ीरो में से कौन सी ज़ीरो हमें पकड़नी है? तो उसके लिए हम यहाँ पर और एक कमांड ऐड कर रहे हैं, रो इंडेक्स कॉमा कॉलम इंडेक्स एंड फाइंड एच एच इज इक्वल टू कॉस्ट। सो फाइंडिंग द पोजिशन फॉर मिनिमम कॉस्ट सेल। तो ये फिर से हमें रो वाइज एंड कॉलम वाइज ये ज़ीरो सेलेक्ट करने का मौका देता है। तो हाउ मेनी पोजिशंस नाउ आई एम हैविंग? ये पोजिशंस अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, आई जस्ट ड्रॉ विद द डिफरेंट कलर पेन। ये पोजीशन है हमारी 1,5, ये पोजीशन है हमारी 2,5 एंड ये पोजीशन है हमारी 3,5। ओके, सो अगर मैं जैसे प्रायरली आपको बोल रही थी कि इंस्टेड ऑफ 40 हियर, अगर यहाँ पर 20 होता, व्हाट आई वाज टेलिंग यू, अगर इंस्टेड ऑफ 40 यहाँ पर 20 होता तो यहाँ पर 20 असाइन हो जाता, राइट। एंड यहाँ पर फिर से आउट ऑफ 30 असाइन होता। नाउ लुक इनटू दिस, अगर यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 30, यहाँ पर 20 है, तो मैक्स ऑफ 8 असाइन हो जाता है, राइट। बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर तीनों भी जगह पर 30 है, तो विच 30 इज मैक्सिमम? दैट इज ऑल्सो वी आर हैविंग क्वेश्चन। सो हाउ डू वी डू when we have to do it manually? We select it randomly, am I right? और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर? I'll just erase that all part. ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पर क्या करते हैं? मुझे अगर ज़ीरो में से कोई भी रैंडमली चूज़ करना है तो what we usually do, मुझे लिस्ट एलोकेशन करना है, करेक्ट। एंड मुझे यहाँ पर मिल रहा है 30 एंड दिस इज 30। सो अगर लिस्ट एलोकेशन मुझे करना है तो ये वाला 30 मैं चूज़ करूँगी, हमारे या कहीं पर भी आ जाओ 30 हम यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। सो इट विल टेक द चॉइस विद दिस पर्टिकुलर कमांड। सो यहाँ पर नेक्स्ट कमांड है हमारी x11 इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए रो इंडेक्स, मिनिमम ऑफ ए जो हमारा कॉलम मैट्रिक्स है उसका रो इंडेक्स, करेक्ट, एंड बी का रो कॉलम इंडेक्स। तो ये कंसीडर करके हमारा x11 चूज़ होता है। सो x11 यहाँ पर क्या चूज़ हुआ है? हाँ, प्रायर टू दैट रो इंडेक्स हमारे 1 2 3 है एंड कॉलम इंडेक्स हमारे 1 5 5 5 है। सो जो मैंने यहाँ पर पोजिशंस बताई थी, दिस इज़ 1,5, दिस इज़ 2,5, दिस इज़ 3,5। So it is going to identify the positions with column index and row index, and nextly it is choosing the minimum of all that 3 rows। लेकिन ये कौन सा मिनिमम होगा? 30 30 30 में से मिनिमम कौन सा होगा? सो ये वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो 30 आएगी, लेकिन कौन सी 30 आएगी? ए 15 1 2 5 या 3 5 पोजिशंस की। तो ये डिसाइड करेगी ये पर्टिकुलर वैल्यू कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू मैक्स ऑफ 1 1, करेक्ट। सो ये प्रोग्राम ये लाइन जैसे रन होती है पूरे प्रोग्राम में, तो हमें यहाँ पर इंडेक्स मिलता है 1, राइट। एंड इंडेक्स के साथ हमें ये वैल्यू मिलती है आई विच वी आर सेविंग एज रो इंडेक्स ऑफ दैट इंडेक्स। सो ये वैल्यू मुझे मिलती है 1 एंड जे हम सेव कर रहे हैं कॉलम इंडेक्स ऑफ दैट इंडेक्स। सो ये वैल्यू हमें मिल रही है 5, करेक्ट। सो 1,5 पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है। एंड फॉर एवरी प्रॉब्लम इट विल गेट रन अकॉर्डिंगली, क्योंकि यहाँ पर हम कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं दे रहे, वी जनरलाइज इट इन अ प्रॉपर वे। अब ये जो ith एंड jth पोजीशन हमारी फिक्स हो चुकी है 1,5, तो y11 हम A1 एंड B5 इस पर्टिकुलर दोनों भी वैल्यूज़ के मिनिमम जितना हम अलोकेट कर रहे हैं, ए का कॉलम एंड बी की रो, उसमें से ith एंड jth पोजीशन वाला एलिमेंट हम फिक्स कर रहे हैं। सो दैट अलोकेशन इज 30। यहाँ पर आप देख सकते हो y11 30 अलोकेट हो चुका है, राइट। एंड नाउ दैट xi, j x1,5 इज असाइंड एज y11। सो पूरा ये एच इज इक्वल टू 0 से y11 तक मीन्स इस पोजीशन पर 30 असाइन करने तक हमें जो भी प्रोग्रामिंग की है वो यहाँ पर की है।
एंड नाउ दैट x15 इज असाइंड एज y11। तो हमारे सॉल्यूशन वाला जो मैट्रिक्स हमने कैपिटल X लिखा था ना, जहाँ पर सारी एंट्री 0 आई थी, वहाँ पर अब 15 पोजीशन पर y11 की वैल्यू आ जाएगी, राइट। एंड जो y11 की वैल्यू हमें मिली है वो वैल्यू यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगी, राइट। कहाँ से सब्ट्रैक्ट होगी? फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोजीशन ये सब्ट्रैक्ट होके मुझे यहाँ पर मिलना चाहिए 0 और यहाँ पर मिलना चाहिए 20। सो ये मुझे लुक आफ्टर करना है थ्रू दिस प्रोग्राम। सो व्हाट वी आर आसानी, दिस इज a in bracket I is equal to aii minus y11 and bjj is equal to bjj minus y11। मीन्स आपके नए वैल्यूज यहाँ पर सेव हो जाएंगे एंड कॉस्ट मैट्रिक्स जो है वो आपको उस पर्टिकुलर पोजीशन पर इन्फिनिटी प्लेस करने के लिए हम यहाँ पर असाइन कर रहे हैं। मीन्स वो पर्टिकुलर पोजीशन फिर फर्दर काउंट में नहीं आनी चाहिए, हमारे। एंड वी आर एंडिंग दैट फॉर लूप ट्वाइस, क्योंकि हम 2 बार फॉर लूप यूज कर रहे हैं तो 2 बार एंड भी करना पड़ेगा। सो वी रन दिस एंटायर प्रोग्राम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि y11 की वैल्यू हमारे पास 30 आ चुकी है एंड हेंस पूरे हमारे सॉल्यूशन के मैट्रिक्स में x में 15 पोजीशन पर 30 एलोकेट हो चुका है यहाँ पर। I'll get back to that positions once again. हाँ, यहाँ पर 30 एलोकेट हो चुका है 15 पोजीशन पर, राइट। एंड आगे जाके देखते हैं तो हमारी ए वाली जो कॉलम है वहाँ पर 50 की जगह आ जाएगा अभी 20 एंड बी वाले रो में अब 30 की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा 0। सो ये हमने असाइन कर दिया। अब ये कंप्लीट होने पर आपका फर्स्ट वाला फॉर लूप कंप्लीट हो गया, क्योंकि आप कॉलम वाइज ये पूरा कर चुके हो, राइट। अब ये रो वाइज आपको फिर से वेरीफाई करेगा। सो फिर से अगर ये फॉर लूप रन हो रहा है तो मेरी जो पोजीशन है 15 वाली वो तो अब आनी नहीं चाहिए फर्दर कैलकुलेशन में, तो यहाँ पर आ रहा है INF। वी सब्सटीट्यूटेड हियर अ कैरेक्टर INF। आप दूसरा कैरेक्टर भी यहाँ पर पुटअप कर सकते हो। वी आर असाइनिंग एनी कैरेक्टर ओवर हियर, क्योंकि जब ये प्रोग्राम रन होगा तब हमारी वैल्यू सिर्फ यहाँ पर कैलकुलेट होगी, ना कि कैरेक्टर। सो INF की जगह आप अलग कैरेक्टर भी दे सकते हो। नाउ द रेस्ट ऑफ पोजिशंस आर ओपन टू यू, बट अकॉर्डिंग टू अवर अल्गोरिदम जैसे ही ये वैल्यू पर्टिकुलर चूज होती है यहाँ पर, लेट मी ड्रॉ दिस विथ, ये वैल्यू जैसे ही हम चूज करते हैं तो इस कॉलम में 0 आ चुका है, तो हम इस जीरोस के एलोकेशंस को कैंसिल करते हैं। तो हमारे पूरे प्रोग्राम में ये कैंसिल भी तो होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता बिकॉज हमारा पहला फॉर लूप एंड हो चुका है। तो हम पहले वाले कॉलम को पहले वाले रो को हर एक कॉलम वाइज यहाँ पर जज कर चुके हैं, हमें, राइट। एंड यहाँ पर आपको इन्फिनिटी वाली ये पोजीशन मिली जो अब वर्क नहीं होगी या ऐड नहीं होगी। नेक्स्ट रो की ये वाली पोजीशंस एंड फर्दर थर्ड रो की ये वाली पोजीशन स्टिल बाकी है। तो जो इनर लूप है ना वो इन सारी पोजीशंस को एड्रेस करेगा एंड आई विल गेट बैक दिस HH वंस अगेन 0। रो इंडेक्स अब बचे क्या है 2 3, कॉलम इंडेक्स क्या बचे है 5 5, मीन्स 2 5 एंड 3 5 वाली पोजीशन स्टिल बाकी है। तो x11 हमारा क्या हो जाएगा 0 0, वैल्यू क्या आ जाएगी 0, इंडेक्स क्या आ जाएगा 1, आई क्या आ जाएगा 2 एंड जे क्या आ जाएगा 5। सो y11 क्या आ जाएगा 0। सो हम यहाँ पर कुछ भी असाइन नहीं कर रहे, तो आपकी जो मैट्रिक्स है जहाँ पर हम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आइडेंटिफाई कर रहे हैं वहाँ पर कहीं पर भी एडिशन नहीं हो रही है। सी दिस 2 2 2 5 वाली पोजीशन पर एडिशन नहीं हो रही है यहाँ पर, राइट। सिमिलरली इट विल गेट रिपीटेड, तो आपका ए वाला कॉलम एंड बी वाला रो भी चेंज नहीं हुआ है। बट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट वी नोटेड इन द कोडिंग, आपकी इस पोजीशन पर इन्फिमम क्या आ जाएगा, मीन्स ये फर्दर कैलकुलेशन में पार्ट नहीं ले रहा है। सेम केस विल हैपन if it goes to the row 3 and it will go through the each of the column. So again you are going to get similar values and यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोई भी एंट्री नहीं हुई है। आपके रो सप्लाई वाला कॉलम
एंड डिमांड वाली रो यहाँ पर भी कुछ चेंज नहीं है, बट हियर यू आर हैविंग इन्फिनिटी, दैट इज जस्ट फॉर सेक कि ये पर्टिकुलर पोजीशन अब कैलकुलेशन में भाग नहीं लेगी, ठीक है। सो ये कंप्लीट हो गया आपका फर्स्ट एलोकेशन। तो आपका जो x है वो सिर्फ सिंगल एलोकेशन के साथ एट 15 पोजीशन 30 कैरी कर रहा है। नाउ इट विल गो बियॉन्ड दिस इनर लूप, अब ये आउटर लूप पर आ गया, तो फिर से ये चेक करेगा आपकी नेक्स्ट फर्दर रिमेनिंग वैल्यूज पर। एच आपका अब 7 आ गया, जैसे हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहे थे कि 7 फर्दर आपकी लिस्ट वैल्यू है, उसे हम मिनिमम ऑफ 20 एंड 35 असाइन करेंगे, 20 असाइन कर दिया। सो लाइक वाइज इट विल गेट रन प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप। तो मैं यहाँ पर शो करती हूँ, तो यहाँ पर 20 आ गया, करेक्ट। अब ये फिर से जहाँ पर 0 आया है वो पोजीशंस कैंसिल करता हुआ दिखाई देगा। देखो यहाँ पर दिस इज 0, करेक्ट, एंड यहाँ पर चेंज होके 15 आ गया, यहाँ पर 35 था पहले। सो कॉस्ट मैट्रिक्स में यहाँ पर इन्फिनिमम आ गया, इन्फिनिटी आ गया, एंड द रेस्ट ऑफ वैल्यूज यू कैन सी सिमिलर। लेकिन ये पूरा रन होके फिर से यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर 30 आ गया, करेक्ट। देन आपकी कॉलम एंड सप्लाई की वैल्यू चेंज हो गई है, तो यहाँ पर फिर से इन्फिनिटी आ गया। सो लाइक वाइज जहाँ जहाँ पर आपके कॉस्ट मैट्रिक्स में हम वैल्यूज एलोकेट कर रहे हैं वहाँ पर हमें इन्फिनिटी प्लेस करना है। सो दैट वी आर डूइंग। एंड यहाँ पर आप कॉलम देखो, यहाँ पर 30 एलोकेट हो चुका है, इस पोजीशन पर 20 एलोकेट हो चुका है, दिस इज 30 एलोकेट हो चुका है, एंड इट विल गेट रन थ्रू द all rows, all columns and all positions, and finally I'm going to get the last cost matrix as I'll just going through all the solutions which are displaying over here. तो यहाँ पर फिर से एक बार नीचे में आती हूँ एंड सी दिस। तो यहाँ पर आपका पूरा कॉस्ट मैट्रिक्स जो है ना वो इन्फिनिटी साइन से या उस कैरेक्टर से रिप्लेस हो चुका है। तो हमारा पूरा LCM मेथड अच्छे से यहाँ पर अप्लाई करके हो चुका है। एंड यू कैन ऑब्जर्व योर बी रो जो कि डिमांड वाली रो है, एंड ए कॉलम जो सप्लाई वाला कॉलम है वो पूरा 0 बन चुका है, राइट। एंड नाउ वी कैन राइट डाउन अवर सॉल्यूशन प्रॉपरली हियर विद द नेक्स्ट स्टेप और नेक्स्ट फेज। सो दिस इज अवर बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। वी आर गोइंग टू रन दिस इज कंट्रोल एंटर, आई एम सॉरी। सी दिस, क्या प्रिंट क्या हो चुका है यहाँ पर, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। सो प्रिंट के लिए ये कमांड है एफ प्रिंट एफ इन्वर्टेड कॉमास में इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज इक्वल टू /n। तो ये नए न्यू लाइन पर इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन डिस्प्ले होगा। सो IBFS इज इक्वल टू 3,5 टेबल यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, एरे टू टेबल X, कैपिटल X की जो वैल्यूज है वो डिस्प्ले होगी। एंड वो वैल्यूज क्या डिस्प्ले हो रही है, सी दिस एंटायर। तो यहाँ पर पोजीशंस काउंट करते हैं 30, काउंट करते हैं टोटल कितनी जगह पर एलोकेशन हुआ है, 1 2, दिस इज 3 4, यहाँ पर 5 एंड यहाँ पर 6 एलोकेशंस वी आर हैविंग, करेक्ट। एंड ये एलोकेशंस हमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस के लिए मिले हैं। नाउ व्हाट आई हैव टू नेक्स्ट चेक इज कि ये जो सॉल्यूशन मिला है वो डीजनरेट है या नॉन डीजनरेट है। तो मुझे करना क्या है, जो हमने ऊपर एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन का काउंट निकाला था m+n-1, उसके साथ हमें ये टोटल BFS सॉल्यूशन की लेंथ मैच करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल कैलकुलेट दैट लेंथ, टोटल BFS। ऐसे हम हमारी लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, किसकी लेंथ, नॉन ज़ीरो वैल्यूज ऑफ कैपिटल X की। तो ये जितनी नॉन ज़ीरो वैल्यूज है उसकी लेंथ कैलकुलेट करेगा ये वाला फंक्शन। And now we will check out if this total BFS is equal to BFS double equal to sign, then print that your initial basic feasible solution is non-degenerate. And अगर else f print f अगर ये equal to नहीं है तो initial basic feasible solution is degenerate, ऐसा print करना है। So we'll run that. This is control enter. So ये run हो जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज इक्वल टू 6, लेंथ
हमारे कैपिटल एक्स की कैलकुलेट हो चुकी है एंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन इज डीजेनरेट। ये हमें सोल्यूशन यहाँ पर मिल चुका है, ये हमारे कमेंट यहाँ पर मिल चुकी है। सो ये प्रिंट हो रही है एंड फाइनल स्टेज आपको कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी है एलसीएम मेथड के साथ। सो कंप्यूट द इनिशियल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थ्रू एलसीएम मेथड। सो इनिशियल कॉस्ट वी आर नेमिंग इट एंड कैलकुलेट कैसे करेंगे, दिस इज द सम ऑफ, किसकी सम है, सम ऑफ आई कॉस्ट डॉट मल्टीप्लाइड बाय एक्स। सो आपकी जो आई कॉस्ट है, अब कॉस्ट आपकी इन्फिनिटी इस INF कैरेक्टर्स के साथ रिप्लेस हो चुकी है ना कॉस्ट वाली मैट्रिक्स। तो हम वो कॉस्ट वाली मैट्रिक्स जहाँ पर असाइन कर चुके थे आई कॉस्ट को, उस कॉस्ट वाली मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है कैपिटल एक्स के साथ। तो ये प्रोडक्ट आपको सारी वैल्यूज़ की सम देगा एंड देन ये वैल्यूज़ की सम आपको प्रिंट करनी है विद दिस कमेंट दैट इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कॉस्ट इज इक्वल टू, और ये कॉस्ट किसके साथ इक्वेट होनी चाहिए, इनिशियल कॉस्ट जो हम ऊपर वाली लाइन पर कैलकुलेट कर रहे हैं। सो ये हो गया हमारा लास्ट पार्ट। सो अगेन कंट्रोल एंटर इट। सो मुझे यहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाएगा, बेसिक इनिशियल कॉस्ट इज 1290 एंड यहाँ पर बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कॉस्ट इज 1290। सो यही सॉल्यूशन हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया था, दिस इज 1290। अब ये सॉल्यूशन जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है वो तो डीजेनरेट था, करेक्ट। हमारे कोई भी प्रॉब्लम नॉन डीजेनरेट भी हो सकते हैं जहाँ पर हमें सारे के सारे नंबर ऑफ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस मिल जाएंगे एंड दैट वी कैन कैलकुलेट वेरी इफेक्टिवली। सो ये पूरा प्रोग्राम है जो स्टेप बाय स्टेप हमने लिखा है एंड दैट यू कैन यूटिलाइज टू सॉल्व any type of LCM to get all the sort of solutions, right? So ये problem तो आपका degenerate था and I'll take one more problem here। यहाँ पर मैं दिखा सकती हूँ आपको, ये problem है हमारा, this is now varied। अब यहाँ पर मुझे ये बताओ आप कि ये आपका cost matrix है, this is first row, this is second row, this is third row, right? So 3/4 का मैट्रिक्स है हमारे पास। ये आपकी डिमांड सप्लाई वाली कॉलम है एंड दिस इज़ योर डिमांड वाली रो। तो मुझे ये बताओ फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो है प्रॉब्लम वो अनबैलेंस्ड है या बैलेंस्ड है। एनीबडी प्लीज टेल दैट। मुझे सिर्फ क्या चाहिए, सम ऑफ ए इज इक्वल टू सम ऑफ बी, ये चेक करना है, इज इट इक्वल, बैलेंस्ड, इट्स बैलेंस्ड, करेक्ट, बैलेंस्ड, या दैट्स राइट। एंड मुझे ये प्रॉब्लम पता नहीं है अभी कि ये डीजेनरेट है या नॉन डीजेनरेट है, मीन्स हमें यहाँ पर बैलेंस्ड प्रॉब्लम है एंड कितने नंबर्स मिल रहे हैं, दिस इज m इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, सो 3 + 4 - 1, टोटल 6 सॉल्यूशंस मुझे मिलने चाहिए, मीन्स 6 डिसीजन वेरिएबल्स की वैल्यूज मुझे यहाँ पर मिलनी चाहिए। सो अगर ये मिलती है तो मेरा सॉल्यूशन जो है वो नॉन डीजेनरेट होगा, राइट। बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है तो मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखती हूँ कि मुझे क्या मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस 3 लाइन्स आई हैव चेंज नथिंग इन द प्रोग्रामिंग। आई रिपीट, इन 3 लाइन्स के अलावा मैंने पूरे प्रोग्राम में जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है अपार्ट फ्रॉम दिस। एंड नाउ आई हैव टू गेट द आंसर, सो लेट अस वेरीफाई, रन दिस प्रोग्राम। तो यहाँ पर शुरू से देखते हैं, एक ही मिनट, मैं कमांड विंडो में आ रही हूँ। सो ये आपकी कॉस्ट मैट्रिक्स प्रिंट हो चुकी है, देन इनिशियल ए प्रिंट हो चुकी है, यहाँ पर बी भी प्रिंट हो चुकी है एंड सी द रिजल्ट, गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड, करेक्ट, जो हमने आइडेंटिफाई किया ही था। आई कॉस्ट असाइन हो चुकी है एंड द एंटायर रिजल्ट इज यू कैन वेरीफाई हियर। एंड सबसे लास्ट वाली स्टेप में मैं आती हूँ and we'll check out whether the initial basic feasible solution is degenerate or non-degenerate। ओके, यहाँ पर हमें पूरा मैट्रिक्स इंक्रीमेंट मिल रहा है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन वी आर गोइंग टू गेट इन टर्म्स ऑफ टेबल। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6 वैल्यूज मिल रही है। वेदर दिस प्रोग्राम विल चेक आउट द टोटल नंबर ऑफ BFS इज 6। यहाँ पर हम लेंथ काउंट कर रहे थे
and so its printing initial basic feasible solution is non-degenerate. That's right, and hence the initial cost we are going to get as 818. So this program is effectively working for any kind of LCM problem. हमने यहाँ पर जो लॉजिक यूज़ किया है ना, वो चेंज कहाँ पर हुआ है, सिर्फ मैं जस्ट मार्क करती हूँ यहाँ पर. सो जो हमारा एंटायर लॉजिक चेंज हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर थर्ड वाली फेज में, यहाँ से यहाँ तक वो LCM का लॉजिक लगा रहे हैं हम पूरा. अब इस शेडेड पार्ट को, या जो मैंने अभी मार्क किया है उस पार्ट को मैंने वैम में यूज़ किया, तो वैम का लॉजिक अलग होगा, वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड का लॉजिक अलग होगा. सिमिलरली अगर मैंने यही लॉजिक NWCM का मीन्स नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड का अगर लगाया तो वो अलग होगा. अपार्ट फ्रॉम दीज शेडेड कोडिंग जो मैंने अभी मार्क किए, उस कोडिंग के अलावा रेस्ट ऑफ थिंग्स आर प्रिटी सिमिलर इन ऑल द थ्री मेथड्स. वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड में या नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में बाकी सारी चीज़ें सिमिलर है, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम के लिए, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए हम ये तो चेक करने वाले हैं कि वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, राइट. ये भी चेक करने वाले हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिलते हैं वो m+n-1 मिलते हैं या नहीं. अगर मिलते हैं तो सॉल्यूशन नॉन डिजेनरेट है, अगर नहीं मिलते हैं तो सॉल्यूशन जो है वो डिजेनरेट है. ऐसा सिर्फ कमेंट हमें लिखना है. एंड हर एक केस में हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मीन्स वो जो कॉस्ट है वो तो फाइंड आउट करने वाले हैं. तो रेस्ट ऑफ थिंग्स आर प्रिटी सिमिलर इन थ्री मेथड्स. जो चेंज हो रहा है लॉजिक, वो थर्ड फेज का लॉजिक चेंज हो रहा है, एंड दैट यू हैव टू स्टडी वेरी प्रॉपरली. ओके, सो गो थ्रू दिस पर्टिकुलर कोडिंग. मैंने हर एक स्टेप को एक्सप्लेन किया है कि ये कैसे वर्क हो रहा है. एंड लाइकवाइज जैसे मैंने यहाँ पर एक प्रॉब्लम सॉल्व किया और इसका रेफरेंस देके आपको ये प्रोग्रामिंग एक्सप्लेन की है, लाइकवाइज वैम का एंड NWCM का आप एक्सप्लोर कर सकते हो. अगर नहीं कर पाते हो तो हम कल ये सेशन ले सकते हैं. आई होप राइट नाउ इट इज़ सफिशिएंट टू गो फॉर LCM मेथड. नाउ प्लीज आस्क. सो मैम वो सिर्फ स्निपेट चेंज होता है क्या, मतलब फॉर I = 1 साइज कॉस्ट कॉमा 1 वहाँ से चेंज होता है. दिस कोडिंग विल बी सिमिलर, लेकिन वोगेल्स में हम क्या कर रहे हैं, यू आर एडिंग पेनल्टीज ना, so that penalties we have to address properly. So I'll come to that coding. एक ही मिनट. This similar. ऊपर का फिर सेम ही है ना मैम? Yes, rest of things are same. Now here check out. We have to find out the penalty values. तो यहाँ पर जो पेनल्टी वैल्यूज हम चेक कर रहे हैं ना, तो वो सब्ट्रैक्शन आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना हम, लीस्ट कॉस्ट यूज करके. तो वो लॉजिक जो है मुझे यहाँ पर प्लेस करना पड़ेगा. So this is the logic. Penalty row wise, penalty column wise we have to identify, and then we have to choose the maximum penalty. So maximum penalty also we are choosing column wise, row wise, and according to that maximum penalty के across हम value positions allocations करेंगे. So that particular thing I need to add in the command. So ये मिडल का लॉजिक हमारा पूरा चेंज है. सी दिस प्रोग्रामिंग इज लिटिल एक्सटेंसिव इन केस ऑफ वैम, क्योंकि हम पेनल्टी स्टेप बाय स्टेप चेक करके फिर हम मिनिमाइज्ड कॉस्ट असाइन कर रहे हैं, देन वी आर सबट्रैकिंग इट, एंड देन हमारी रो या कॉलम के सप्लाई वाला कॉलम एंड रो वाली जो डिमांड की रो है उसमें से हम ज़ीरो करते जाएंगे. सो दैट ऑल थिंग्स वी हैव टू पुट हियर लॉजिकल. द रेस्ट ऑफ थिंग्स आर सेम. इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कैलकुलेट करो, उसे प्रिंट करो, देन उसकी लेंथ चेक करो, डिजेनरेट है या नॉन डिजेनरेट है ये चेक करो, एंड फाइनली उसकी कॉस्ट मेंशन करो. सो दैट स्टेप्स आर सेम. सो ये थर्ड वाली जो स्टेप है ना वो एक्सटेंसिव है वैम में, एंड NWCM में ये मेथड और थोड़ी सी चेंज है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर चूज़ कर रहे हैं. सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू चूज़. तो यहाँ पर कहाँ पर गया वो फॉर वाला लूप, हाँ वाइल लूप के साथ हम L = 0 पोजीशन वाइज हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं. सी दिस प्रोग्रामिंग. तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में ये प्रोग्रामिंग बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है, अलोकेशन स्टोर करने हैं, देन रो वाइज एंड कॉलम वाइज ये काउंटर करना है कि कहाँ पर एलोकेशंस है, तो मैं नेक्स्ट वाला नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर चूज़ करूँ. ऐसे एलोकेशंस करते जाने हैं.
ठीक है? Okay, ma'am. Yes. Any other doubt, anyone? According to my perception now, I completed LCM method today, and if I could send you LCM method entire programming, VAM method entire programming, and NWCM entire programming, it will take 1 day to understand that, and rest of part is quite similar, क्योंकि आपको आपके गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की सिर्फ कॉस्ट मैट्रिक्स, सप्लाई वाली मैट्रिक्स एंड डिमांड वाली मैट्रिक्स ऐड करनी है. The further things are pretty similar. Now the major question is that what type of problem we are going to ask you on this particular part in ET examination. And second thing that what kind of programming we will be given you as assignment for these three methods. Correct? So I'll answer that question, but prior to that, if you are having any doubts, please ask. Because I think I should give you little time to think upon that LCM method, and then I'll explain you the NWCM and VAM method. Or if you are very interested, you can go at your own also for both of this program. I'll share you the programming here. Anyone having any doubt? No, ma'am. Okay, Neeraj. Fine. So I'll send you this recorded video. Yes, Kanishka. Fine. I'll just check out the chat window of both of the sessions. Okay, no doubt for anyone. I'm sharing the programming as well, and a couple of questions we are going to give you, so you have to draft that questions properly, all right, and you have to check out whether it is going to give you the same answer or not. So shall we stop?